ملتان سپورٹس گراؤنڈ میں فلڈ لائٹس نصب مگر تاحال غیر فعال بجھی لائٹس اور ویران میدان نوجوان کھلاڑی مایوسی کے عالم میں گھروں کو لوٹنے لگے اندھیروں میں ڈوبا گراؤنڈ نوجوانوں کا جذبہ اور جوش مان پڑنے لگا تفصیلات سے آگاہ کریں گے اون عباس بالکل بات کریں تو اس وقت ہم ملتان سپورٹس گراؤنڈ میں موجود ہیں اور یہاں پر جو فلڈ لائٹس نصب کی گئی ہیں شام کے وقت ایکٹیو نہیں کی جاتی ہیں اور اس وقت جو ہے شہری جو ہیں کچھ ہمارے ساتھ کھلاڑی موجود ہیں جو کہ یہاں پر کھیلنے آئے ہیں مگر فلڈ لائٹس آن نہ ہونے کی وجہ سے اب مایوس واپس جا رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اب بتائیے گا کہ اگر بات کریں تو رات کے وقت جو ہے فلڈ لائٹس نصب بھی کی گئی ہیں اس گراؤنڈ میں جو ضلع انتظامیہ کا گراؤنڈ ہے لیکن ایکٹیو نہیں کی جاتی اس حوالے سے آپ کو کتنی پریشانی کا سامنا رہتا ہے اور دن کے وقت کیونکہ گرمی ہے ابھی موسم بھی چینج ہو رہا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بالکل ایسا ہی ہے موسم بھی چینج ہو رہا ہے اور رات کے ٹائم ہمیں کافی پریشانی ہوتی ہے اور لائٹیں آن نہیں ہوتی اور اس وجہ سے ہمیں اب مایوس ہو کے واپسی جا رہے ہیں بس ہم آئے تھے یہاں کھیلنے لیکن لائٹس بند تھی اس وجہ سے ہمیں واپس جانا پڑ رہا ہے اب ہمیں اس وجہ سے ہم کھیلنا چاہتے ہیں اچھے لیول پہ کھیلنا چاہتے ہیں لیکن اس وجہ سے ہمیں مایوس ہونا پڑتا ہے اس وجہ سے ٹھیک ہے انتظامیہ سے کیا مطالبہ کریں گے فلڈ لائٹس لگائے ہوئے ہیں تو فلڈ لائٹس آن کرنے کے بعد یہی ہے جب لگائے ہوئے تو اس کو آن کریں ہم کھیل سکیں اور بچے بھی کھیل سکیں سب کو اس ٹائم جانا پڑتا ہے اسی وجہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے فلڈ لائٹس جو نصب ہیں انہیں ایکٹیو کیا جائے تاکہ ضلع انتظامیہ کے جو یہ گراؤنڈ ہے ملتان سپورٹس کمپلیکس یہاں پر بہتر کرکٹ اور اس کے ساتھ ساتھ فٹ بال اور دیگر گیمز جو ہیں کھلاڑی کھیل سکیں جی بہت شکریہ اون عباس آپ کا گلگشت میں کمپریہنسو گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کے گیٹ کے ساتھ پبلک ٹوائلٹ کی تعمیر کا ایشو طالبات کے والدین کے شدید اعتراضات اور روہی پر خبر نشر ہوتے ہی انتظامیہ کو ہوش آ گیا اسکول پرنسپل کے لیٹر کو ردی کی ٹوکری کی نظر کرنے والی انتظامیہ نے معاملہ سنگین ہونے پر ٹوائلٹس کی تعمیر کا کام فوری طور پر روک دیا سی ای او ایجوکیشن کہتے ہیں کہ وہ اس پر ڈی سی سے بات کر رہے ہیں کمشنر ملتان نے بھی نوٹس لے کر ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ سے رپورٹ مانگ لی ہے یہ سارا معاملہ تھا کیا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ تعلیمی مرکز کے دروازے پر واش روم بنانے کا پرتعفن منصوبہ گلگشت گرلز اسکول کے باہر پبلک ٹوائلٹ بنانے کے لیے بنیادیں کھود دی گئیں اسکول پرنسپل کے لیٹر کے باوجود کسی متعلقہ ذمہ دار نے نوٹس نہ لیا روہی کی خبر پر ضلع لودھرا کی غافل انتظامیہ جاگ اٹھی ڈپٹی کمشنر کے سیلاب زدہ بستی سنیارا کے سروے کے لیے احکامات جاری اسسٹنٹ کمشنر کو ہدایات جاری تمام نقصانات کا ڈیٹا ڈی سی آفس میں جمع کروائیں بستی سنیارا والا کے 35 مکان اور سینکڑوں ایکڑ فصلیں دریابرد ہوئیں سروے ٹیمز نے بستی کو سروے میں شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا بستی کے درجنوں مکینوں نے صبح ڈی سی آفس کے باہر اپنے حق کے لیے احتجاج کیا احتجاج کی خبر کو روہی نے نمایاں طور پر نشر کیا تھا ملتان میں بلدیاتی انتخابی گہما گہمی تیز سیاسی ڈیرے آباد امیدواروں نے جوڑ توڑ اور رابطوں کا سلسلہ شروع کر دیا لیگی رہنماؤں کا اکٹھ بلدیاتی انتخابات کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے جنید انور ملتان میں بلدیاتی انتخابی گہما گہمی تیز سیاسی ڈیرے آباد امیدواروں نے جوڑ توڑ اور رابطوں کا سلسلہ شروع کر دیا لیگی رہنماؤں کا اکٹھ بلدیاتی انتخابات کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے ملتان میں بلدیاتی انتخابات گہما گہمی تیز ہے سیاسی ڈیرے آباد ہیں جنید انور سے ہمارا رابطہ بحال ہو چکا ہے جی جنید الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ بلدیاتی نمائندے جو ہیں وہ متحرک دکھائی دے رہے ہیں سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی اپنے بلدیاتی انتخاب لڑنے کے لیے حکمت عملی جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے اس میں مسلم لیگ نون کے رہنما سعد خورشید کانجو بھی موجود ہیں جو کہ ملتان چوک کمارا یونین کونسل کے اندر جو ہے وہ اپنے جو ہم خیال دوست ہیں ان کے اجلاس میں شریک ہے بات بھی کریں گے ساتھ ساتھ بلدیاتی انتخابات کی اب گونج ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد جو اب سرگرمیاں تیز ہو رہی ہیں مسلم لیگ نون بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کیا تیاریاں کر رہی ہے جی جنید بھائی بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھ سے رابطہ جیسے کیا وہ اپنی اپنی حلقہ بندیوں پر غور کر رہے ہیں اور اس پہ سوچ بچار آپس میں مشورہ شروع کر دیا ہے لوگوں نے اور کہ دیکھیں گے کہ کس طرح حلقہ بندیاں ہوتی ہیں اور ان کے مطابق پھر اپنے اپنے فیصلے کریں گے کون سے وارڈ آتے ہیں کون سے نہیں آتے ہیں تو جب تک پوری حلقہ بندیاں تشکیل نہیں پا جاتی تب تک یہ فیصلہ کرنا ہو سکتا ہے مشکل ہو جائے گا کس نے الیکشن لڑنا ہے اور کہاں سے لڑنا ہے تو یہ جب
8 दिसंबर तक ये काम जब मुकम्मल हो जाएगा तो फिर अगला मरला शुरू होगा कि अब कौन कौन से जो बेहतर कैंडिडेट हैं उनको मैदान में लाया जाए और उनको इलेक्शन लड़ाया जाए। हाँ जी बिल्कुल, जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, क्या कहेंगे जी आज के इजलास में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद साहब, आपका इंतहाई मशकूर मैं, आपने ये बुलाया है हमें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से हमने पहले भी दोस्तों से मीटिंग्स कर रहे हैं, तो हमने पहले भी 2 इलेक्शन लड़े हैं बल्दियाती, आगे भी इलेक्शन लड़ेंगे बल्दियाती इंशाअल्लाह ताला, और मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन की ऐलान के बाद से अब सरगर्मियां तेज हैं, लोगों के अंदर जोशो खरोश क्या देखते हैं आप? अब आप ये देखें कि हम जोशो खरोश इतना है कि इलाके के जो मसाइल थे, जो पिछली हुकूमतों ने बर्बादी की थी, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से हमारे काउंसलर्स, हमारे चेयरमैन, हमारी यूथ, हम उनसे हम काम करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से जीतकर और अवामी नुमाइंदे बनकर लोगों की खिदमत करने का जज्बा है हमारे अंदर, और इंशाल्लाह मुल्तान को, अपनी यूसी को, अपने हलके को, पाकिस्तान को हम तरक्कियों की तरफ लेकर जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो है वो जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है, कारकुनों को मनाने का सिलसिला जो है उसका सिलसिला शुरू हो गया है, और उनका कहना है कि जोड़ तोड़ के साथ साथ जो अवामी मसाइल हैं उनके ऊपर भी जो है वो लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और मसाइल हल करने की जो है वो यकीन दहानी भी करवाई जाएगी। बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर आपका। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद सिंधु की साउथ सिटी हस्पताल आमद। डिप्टी कमिश्नर ने हस्पताल में तिब्बी सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। वसीम हामिद सिंधु ने मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया और अदविया चेक की। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों से मुलाकात करके मसाइल सुने। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। मरीजों को मियारी इलाज और मुकम्मल सहूलियात फराहम करने की हिदायत। लोधरा के सरकारी अस्पतालों में नाकिस इंतजाम। डिप्टी कमिश्नर का दुनियापुर तहसील अस्पताल का दौरा। सीईओ डीएचओ हेल्थ भी हमरा। तैयब खान आवान तहसील अस्पताल दुनियापुर में शदीद बद इंतजामी पर डीसी सीखवा एमएस डॉक्टर मोहम्मद सलीम को फौरी ओहदे से बरतरफी कर दिया। डिप्टी डीएचओ दुनियापुर को अस्पताल के मुंतजिम का आर्जी चार्ज दे दिया। अस्पताल के तमाम शोबे मरीजों के इलाज से गाफिल थे। असिस्टेंट कमिश्नर लिया की समरा नशेब में खुली कचहरी में मर्दो ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर ने साइलिन की दरख्वास्तों पर सामात और फौरी हल के अहकाम दिए। शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि खुली कचहरी का इनेकाद इंतहाई अहसन इकदाम है। सरगोदा में अवामी तहफ़्फ़ुज़ और जदीद टेक्नोलॉजी के इम्तिसाज से सिक्योरिटी के एक नए दौर का आगाज हो गया है। प्रेस क्लब वफ्द का सदर अब्दुल हन्नान की क़यादत में सेफ सिटी कंट्रोल रूम का दौरा। एसपी आमिर मुश्ताक ने वफ्द को जदीद मॉनिटरिंग निजाम पर ब्रीफिंग दी। शहर भर में 247 जदीद कैमरे और 30 वाईफाई पॉइंट्स फाल, 10 पैनिक बटन हसास मकामात पर नस्ब, 2 माहौलियाती सेंसर फजाई आलूदगी मॉनिटर कर रहे हैं। ई चालान सिस्टम से ट्रैफिक नज़्मो ज़ब्त में बेहतरी आई। सेफ सिटी रिपोर्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल चोरी में 30% और राहजनी में 16% कमी। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गर्ल्स कॉलेजेस में इमरजेंसी बटन नस्ब किए जा रहे हैं। इंतजामिया गंदम के सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। गंदम की फी मन कीमत 3800 रुपये हो गई। मार्केट में गंदम की शदीद किल्लत। आड़ती जमींदारों से महंगे दामों गंदम खरीदने पर मजबूर हैं। गंदम की कीमत बढ़ने से आटे की कीमतों में इजाफे का खदशा मजीद बढ़ गया है। गंदम महंगी होने से आटा, मैदा और सूजी की कीमतें भी बढ़ गई हैं। 2 दिनों में गंदम 10 रुपये किलो, आटा 10 रुपये, मैदा 20 रुपये और सूजी भी 20 रुपये किलो महंगी हो गई है। बुनियादी ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में तेजी से इजाफा मुतवस्सित तबके पर इजाफी बोझ बन गया। शहरियों के घरेलू बजट मुतासिर होने लगे। जमींदारों से महंगे दामों गंदम खरीदने पर मजबूर हैं। गंदम की कीमत बढ़ने से आटे की कीमतों में इजाफे का खदशा मजीद बढ़ गया है। मुल्तान में लाल टमाटर ने 3 सेंचुरियां मुकम्मल कर ली हैं। सब्जी मंडी में टमाटर 260 रुपये फी किलो, जबकि ओपन मार्केट में 300 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगा। टमाटर महंगा होने से शहरी परेशान। हांडी पकाना भी मुश्किल हो गया है। बढ़ती कीमत से 60 रुपये किलो मिलने वाला टमाटर आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है। मुल्तान में सब्जी और फलों की कीमतें कंट्रोल में ना आ सकी। सरकारी निर्खों को हवा में उड़ा दिया गया। दुकानदारों ने मर्जी के रेट मुकर्रर कर लिए। खुद साख्ता महंगाई से गरीब आवाम परेशान। सब्जियां और फल खरीदना भी अब शहरियों की जेबों पर भारी पड़ने लगा। मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई का राज बरकरार है। सब्जियों और फलों की कीमतों को पर लग गए हैं। दुकानदारों ने सरकारी नरखनामों को हवा में उड़ा दिया, जबकि मर्जी के खुद साख्ता रेट मुकर्रर कर लिए हैं। हरी मिर्च का सरकारी नर्ख 107 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में 140 रुपए किलो पर दस्तयाब। टमाटर का सरकारी नर्ख 140 रुपए किलो मुकर्रर, मार्केट में 200 रुपए किलो फरोख्त। सरकारी नरखनामे में प्याज 82 रुपए किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में प्याज 100 रुपए किलो तक फरोख्त होता रहा। इसी तरह सरकारी नर्खों में फली
गवारा 150 रुपए किलो, गाजर 90 रुपए किलो और भिंडी 170 रुपए किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में फली गवारा 200, गाजर 110, भिंडी 190 रुपए किलो फरोख्त होती रही। सरकारी रेट में बैंगन 110, लहसुन 240 और अदरक 520 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में बैंगन 150, लहसुन 350 और अदरक 600 रुपए किलो फरोख्त होता रहा। इसी तरह फलों के दाम सुनकर शहरी खाली हाथ लौटने लगे। सरकारी नरखनामे में अंगूर सुंदरखानी 338 और सेब 220 रुपए, अनार 300 रुपए किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में अंगूर सुंदरखानी 550 और सेब 350 रुपए और अनार 550 रुपए किलो पर दस्तयाब है। मार्केट में अमरूद 240 रुपए किलो, जबकि केले 100 रुपए से 160 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगे। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। रहीमजर खान में गंदम महंगी होने से आटा, मैदा और सूजी की कीमतें भी बढ़ गई। 2 दिनों में गंदम 10 रुपए किलो, आटा 10 रुपए, मैदा 20 रुपए और सूजी भी 20 रुपए किलो महंगी हो गई है। बुनियादी ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में तेजी से इजाफा मुतवस्सित तबके पर इजाफी बोझ बन गया। शहरियों के घरेलू बजट मुतासिर होने लगे। रहीमयार खान में सिर्फ 2 दिनों के दौरान गंदम, आटा, मैदा और सूजी की कीमतों में नुमाया इजाफा शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन गया। बाजारों में गंदम 10 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 80 रुपए से बढ़कर 90 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि आटे की कीमत में भी 10 रुपए किलो इजाफे के बाद 100 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। इसी तरह मैदे और सूजी की कीमतों में 20-20 रुपए किलो इजाफा हुआ और दोनों अशिया 120 रुपए फी किलो में दस्तयाब हैं। शहरियों ने बताया कि रोजमर्रा के अखराजात पहले ही बढ़ चुके हैं, तनख्वाहें वही हैं मगर हर चीज महंगी होती जा रही है। दूसरी जानिब इंतजामिया की तरफ से अभी तक कीमतों में कमी के लिए कोई वाज़ेह इक़दामात नहीं किए गए। 2-3 दिन से मार्केट में इन चीज़ों का जो रेट है सूजी और मैदे का वो बढ़ गया पहले की निस्बत 20-30 रुपए। तो अब मार्केट में शॉर्टेज भी शुरू हो गई है, पहले से नहीं मिल रहा और आम आदमी को लेना मुश्किल होगा ये। तो यही गवर्नमेंट से अपील है कि इसके रेट्स दोबारा सही किए जाएं पहले की तरह। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर गंदम, आटा, मैदा और सूजी की कीमतों को कंट्रोल रेट पर लाने के इकदामात किए जाएं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीमयार खान। शादी ब्याह की खुशियों में सबसे नुमाया होता है दुल्हन का लिबास, मगर आजकल उरूसी मलबूसात खास तौर पर लहंगे आम लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। महंगाई के इस दौर में शादी के हसीन ख्वाब पर भारी कीमत का तड़का लग चुका है। मुल्तान की तारीखी हुसैन आगाही बाजार में दुल्हन के मलबूसात की रौनकें देखने लायक हैं, लेकिन कीमतें सुनकर ग्राहकों के होश उड़ जाते हैं। का सीजन आ गया, इसके साथ ही मुल्तान के हुसैन आगाही बाजार में उरूसी मलबूसात की बहार आ गई। दुल्हनों के लिए खूबसूरत लहंगे, गोटा किनारी, जरी, दबके और तिले के काम से मुज़य्यन कपड़े दुकानों की रौनक हैं, मगर कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मार्केट में रिवायती सुर्ख और सुनहरी पेस्टल शेड्स में डिजाइन, राजस्थानी और बनारसी स्टाइल्स के साथ साथ ब्रांडेड डिजाइनर लहंगे भी दस्तयाब हैं, लेकिन एक आम लहंगे की कीमत भी 50,000 से शुरू होकर लाखों तक पहुँच जाती है। ब्राइडल ड्रेस लेने आई हूँ, अभी मैं स्टूडियो में खड़ी हुई हूँ, तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कलर बहुत अच्छे हैं, लहंगे बहुत अच्छे हैं, लेकिन 10-12 लाख और मतलब इससे भी ज़्यादा कॉस्टली हैं, आम इंसान कोई भी ले नहीं सकता। दुकानदारों के मुताबिक महंगाई के बायस कपड़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। इसके बावजूद लोग अपनी खुशियों के लिए अच्छे मलबूसात खरीदना चाहते हैं। वो कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ बजट के मुताबिक मलबूसात फराहम करें, मगर खाम माल और मजदूरी की बढ़ती कीमतें उनके लिए भी परेशानी का बायस हैं। कैपेसिटी को देखकर भी हम ऑर्डर में बनाते हैं। हमारे पे लहंगे तो 10 लाख रुपए तक का भी होता है, 5 लाख का, 4 लाख का, 3 लाख का, 50,000 से हमारा स्टार्ट होता है। कि महंगाई इतनी हो गई है, कारीगरों की दिहाड़ी, कारीगरों के अखराजात वो भी पूरे नहीं होते। बढ़ती महंगाई ने शादी के जोड़े की इस खूबसूरत रिवायत पर गहरा असर डाला है। दुल्हन के लिबास की ये हसीन दुनिया अब सिर्फ खास तबके तक महदूद होती जा रही है, जबकि आम खानदानों के लिए ये ख्वाब देखना भी नामुमकिन होता जा रहा है। बाजारों में शादी के सीजन पर रौनकें अरूज पर हैं, मगर महंगाई के बोझ तले दुल्हन के जोड़े के हसीन ख्वाब का हकीकत में बदलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। कैमरामैन अरशद गुजर और फहीम आबिद के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। नाज़रीन, माजी में कभी खौफ की अलामत समझा जाने वाला मुल्तान का कातीमार रोड, जो बाद में रूहानियत की निशानी बना, सदियों पुराना तारीखी रखने वाला ये शहरा और मोहल्ला कातीमार आज खुद मसाइल की जद में है। गलियों में जा बजा बिखरी गंदगी, टूटी फूटी गलियां और नाके सीवरेज निज़ाम इस इलाके की पहचान बन चुका है। इस रोड का नाम कातीमार कैसे पड़ा, बता रहे हैं गोह रहमान इस रिपोर्ट में। मुल्तान शहर का शुमार दुनिया के कदीम तरीन शहरों में किया जाता है। तारीखी हवालों के मुताबिक इस शहर की तारीख 5000 साल पुरानी है।
जहां पर इस शहर के 7 तारीखी दरवाजे पहचान है, वहीं पर कुछ ऐसे रोड भी निकलते हैं जो अपने नाम के हवाले से जाने जाते हैं। इस वक्त हम मुल्तान के डेली गेट चौक पर मौजूद है। यहाँ से निकलने वाला काती मार तारीखी रोड किस हवाले से मशहूर है और इसकी तारीखी पस मंजर क्या है, और ये रोड डेली गेट से किस तरफ जाता है, आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। कातीमार रोड का नाम जैसे ही कानों में पड़ता है तो जहन में एक तजस्सुस भी जन्म लेता है। आखिर इस इलाके का नाम कातीमार ही क्यों पड़ा? तारीखी हवालों से इसका नाम एक कत्ल से पड़ा है, जो अंधा कत्ल छुरियों के वार से किया गया और इस रोड से गुजरने वालों के लिए खौफ की अलामत बन गया। ये जैसे खूनी बुर्ज है ना, सिकंदर आजम को वहाँ जरब लगी थी और वो उसी जरब से वफात पा गया, उसका नाम खूनी बुर्ज रख दिया। यहाँ पे भी बताया जाता है कि पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ कोई झगड़ा हुआ, लोकल लोग यहाँ पर बसते थे सरायकी, तो वो सरायकी जो है ना छुरी को काती कहते हैं, उस वजह से बंदा कत्ल होने की वजह से छुरी लगने से, तो उस जमाने के हिसाब से सरायकी में इसको कातीमार रोड कहा जाता है। कातीमार रोड का दूसरा हवाला खासा रूहानी है, जो भारत के शहर दिल्ली से चले शख्स को नाक की सीधी लकीर में चलते हुए शहर ओलिया मुल्तान में सूफी बुजुर्ग हजरत हाफिज जमाल के मजार तक ले आती है। कातीमार रोड जो एक वक्त में अहम गुजरगाह हुआ करता था, अब सीवरेज और सफाई की नाकिस सूरत हाल के 22 मसाइलिस्तान बन चुका है। ये जी मुल्तान मदीनतुल औलिया है। ये मसला ये था, दिल्ली से यहाँ से आदमी आते थे, इसी रोड से बाबे हाफिज जमाल जाते थे, वहाँ पर ज़ियारत करते थे। अब इस रोड का यही मसला है सीवरेज का, कि इतना पानी होता है कि यहाँ से लोग गुजरते ही नहीं है। कातीमार रोड की लंबाई 1 किलोमीटर से जायद है और इसके अतराफ में 2 पुरानी बस्तियां आबाद हैं, जहां पर 1 लाख से जायद लोगों का बसेरा है। हमने आपको इस रिपोर्ट में मुल्तान के कातीमार रोड के तारीखी पस मंजर को बताया है और इस रोड पर बसने वालों के मसाइल भी बताए हैं। अगर ये मसाइल हल कर दिए जाए तो इस तारीखी रोड की बहाली में मावून साबित हो सकते हैं। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ गौहर रहमान शेख, रोही, मुल्तान। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुल्तान की तरक्याती स्कीमों के हवाले से इजलास मुनक्किद। कमिश्नर आमिर करीम खान की जेर सदारत इजलास में तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। कमिश्नर आमिर करीम खान का गर्देजी मार्केट में वॉशरूम से मुतालिक शिकायत पर नोटिस, डायरेक्टर डेवलपमेंट मुबशिर रहमान को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। हुसैन आगाही में जेर तामीर वॉशरूम्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कहा, तामीराती कामों के मयार पर समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 8 नंबर पर शहरियों के लिए इंतजारगाह और सिटिंग एरिया तैयार किया जा रहा है। ई बस मंसूबे के तहत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 49 बस शेड्स तामीर होंगे। पीर खुर्शीद कॉलोनी की सड़क की बहाली के लिए वासर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मुश्तरका स्कीम बनाने की हिदायत। निश्तर रोड पर रश कम करने के लिए पार्किंग प्लान पर भी ब्रीफिंग दी गई। नाज़रीन, मुल्तान में ग्रीन बस के रूट्स फाइनल। 45 माहौल 200 इलेक्ट्रिक बसेस शहर की सड़कों पर रवाना होंगी, जबकि मियांवाली में ग्रीन बस के मुसाफिरों के लिए 84 बस स्टॉप बनाने का फैसला। उधर मुजफ्फरगढ़ में वजीर आला का दौरा मुतवक्के, ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगी। मुल्तान में इलेक्ट्रिक ग्रीन बस सर्विस चलाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। पहले फेज में 45 बसें चलाई जाएंगी। इंतजामिया की जानब से पहले फेज के 3 रूट्स फाइनल कर लिए गए हैं। शहरियों का कहना था कि ग्रीन बस के चलने का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। उधर मियांवाली में इलेक्ट्रिक ग्रीन बस पर सफर करने वाले मुसाफिरों की सहूलत के लिए हुकूमत पंजाब मुतहर्रिक हो गई। डिप्टी डायरेक्टर शुएब रजा खान कहते हैं, बस सर्विस के रूट्स पर 84 बस स्टॉप बनाए जाएंगे। दूसरी जानब जिला मुजफ्फरगढ़ में भी अब इलेक्ट्रिक ग्रीन बसें फराटे मारती दिखाई देंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 13 अक्टूबर को मुजफ्फरगढ़ के दौरे के मौका पर इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह करेंगी। जिला भर में 17 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी और डेरा गाजी खान में ग्रीन बस सर्विस कामयाबी से रवां दवा है। मुसाफिर बड़ी तादाद में रोजाना की बुनियाद पर ग्रीन बसों में सफर कर रहे हैं। मुसाफिरों ने वज़ीर आला से ग्रीन बसों की तादाद बढ़ाने और रूट्स को तवील करने का मुतालबा कर दिया, जबकि 30 मुसाफिर खड़े होकर सफर करते हैं। आगे बढ़े, आपको बताया लोधरा में 13 अक्टूबर से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए इंतजामात मुकम्मल। डीसी ऑफिस के कमेटी रूम में जिला इंतजामिया के अफसरान और महकमा सेहत का मुश्तरका इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, CEO हेल्थ, यूनिसेफ और WHO महकमों के नुमाइंदे शरीक। जिला भर के 5 साल से कम उम्र 3,85,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम में 1449 मोबाइल टीमें हिस्सा लेंगी। पोलियो टीम वर्किंग की सख्त निगरानी होगी। CEO हेल्थ डॉक्टर फरहान समीजा का कहना था कि पोलियो मुहिम 13 से 16 अक्टूबर तक जारी रहेगी। मकसद जिला को पोलियो फ्री बनाना है।
यूनिवर्सिटी ऑफ लिया के मेन कैंपस में जदीद कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लिया प्रोफेसर डॉक्टर जुबैर अबू बकर ने इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के मौके पर कैंपस डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली बुज़दार भी मौजूद रहे। वाइस चांसलर डॉक्टर जुबैर अबू बकर का कहना था कि यूनिवर्सिटी ऑफ लिया तरक्की के मनाजिल तेजी से तय कर रही है। जल्द यूनिवर्सिटी में मजीद सहूलियात भी फ्राहम की जाएंगी।